This one is the next one. So, ma'am, let me see. And one more slide was there in between. Okay, it's okay. That was just starting. Okay. Okay, student. Okay, today again we will do the addition and subtraction topic. And the first question is there on the slide. You have to write the answer in the chat box. Yes, very good. I can see the answers in the chat box. 10, 10, 10. Very good. 4 plus 6, 10. 4 केक है, उसमें 6 और ऐड कर दिए तो आंसर आ गया 10. Ma'am, share the answer please. Okay, that is the right answer, 10. Next slide, ma'am. You can check your answer, beta. Answer is there on the screen. Again now, 10 balls are there in the one box और उसमें हमने 2 और ऐड कर दी. So now what will be the answer? Yes, very good. ये S मेरी कंपनी वालों ने बेटा, you have written 412. 1 into 0 12. ये कैसे लिखते हो बेटा? 12 is the answer. 10 plus 2 12. The right answer is 12. Very good. Very good, बच्चे. Very good. टेक पूछ रहा बेटे, आपने सिर्फ 1 लिख के भेजा है. I don't know. You forgot to write 2. Ma'am, share the answer, please. So the right answer is 10 plus 2 equals to 12. जब हमने 10 में 2 और balls ऐड कर दी तो वो हो गई हमारे पास total 12. Next. Now see, some pencils are highlighted. Highlighted वाली कितनी है? 4 pencils हैं. और अब हम बॉक्स में कितनी पेंसिल्स और ऐड करें कि टोटल जो आंसर है वो हमारे पास 9 पेंसिल्स बन जाए. हमें 4 पेंसिल्स को 9 बनाने के लिए कितनी पेंसिल और ऐड करनी पड़ेंगी? यस, वेरी गुड. All are giving right answers. रितु शर्मा बेटे, मैंने पूछा है कि 9 बनाने के लिए हमें और कितनी ऐड करनी पड़ेगी? 9 is not the answer. Answer is 5. Those who are writing 5, that is the correct answer. Yes. Many children are giving right answer. बेटे ये एक बच्चा कितनी बार 5-6 times उसने 5 लिख के सेंड कर दिया. Write your answer only once in the chat box. No need to write again and again. Yes, good, good. जिसको ये समझ में आ गया है कौन सा मेथड, जिसको नहीं आया वो पहले 4 को माइंड में रखेगा और उसके बाद ओपन करनी है फिंगर्स 5, 6, 7, 8, 9. तो कितनी फिंगर्स 9 तक ओपन हुई? That will be the answer. Okay? This way you have to do. जिसको नहीं समझ में आया उसको उसके लिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया. मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आंसर शेयर कर दीजिए. The right answer is 5. Now you can count the pencils also. नीचे हमारे पास 9 pencils हैं. Okay? Now next question. Now see, 8 bananas are there. 8 के बाद 4 हमने और ऐड कर दिए उसमें. ऐड किए हैं. You have to give the answer of addition. 8 के after 9, 10, 11, 12. Students are writing right answer in the chat box. That's very good. All are very giving quick answers. All of you are. Yogita Verma, Jugal Kumar, Perry Company, Bushin, yes. Aman.
Very good. Ma'am, share the answer, please. So many answers are here. Yes, beta, you can check your answers also. Those who have written. Yes. Now the next question is there on the slide. 6 कैंडल्स हैं, अब मैम ने 9 और डाल दी उसमें, तो राइट डाउन द राइट आंसर। एग्जाम में हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्ट ही आए या फिर नंबर्स ही आए, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको एग्जाम में भी दोनों चीजें गिवन होंगी। ओके, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। ये 25 वाला बच्चा कौन था? 25 इज अ रॉन्ग आंसर। आपको 6 को माइंड में रखना है, 9 फिंगर्स ओपन करनी है, देन यू हैव टू काउंट, स्टार्ट काउंटिंग आफ्टर द 6 के आफ्टर स्टार्ट करनी है काउंटिंग फिंगर्स की, और जो आंसर आएगा दैट आंसर यू हैव टू राइट इन द चैट बॉक्स। Yes, students are writing right answer. Very good. Okay, ma'am, you can share the answer. Dimpy Minhas, बेटा आपने 12 लिखा है, 12 कैसे हुए? डिम्पी मिनहास के मेन नेम्स आई थिंक हरलीन होती है ना मैम? Yes, ma'am. हरलीन बाय मिस्टेक 12 लिखा है कि माइंड में कुछ कंसेप्ट गलत है आपके बेटा? प्लीज लेट मी नो। मैम बाय मिस्टेक। ओके, इट्स ओके। So the right answer is 1, 5, 15. Ma'am, share the next question. Okay, student. Now this is a matching. Okay. मैचिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने 1 बाय 1 पहले मुझे बताओ कि 1 नंबर हम किसके साथ मैच करेंगे? 1 वाला आंसर तो लाइन के साथ मैच किया हुआ, राइट? तो आप मुझे सभी चैट बॉक्स में इस क्वेश्चन को लिसन बेटा 1 बाय 1 आंसर मत भेजना बेटा, 1 बाय 1 आंसर मत सेंड करना, इसको आप अपनी नोटबुक के ऊपर पहले मैच कर लो, और जो मैचिंग वाली साइड वाली नंबरिंग है फिर वो चैट बॉक्स में आप सेंड करोगे। ओके, लाइक फर्स्ट नंबर पे जो है 6 है नंबर, तो 6 नंबर हमारे पास यहाँ पे कहाँ पे है? 2 नंबर पे, तो 2 नंबर इधर से यहाँ पे हम जो हमारी स्क्रीन है उसका जो फर्स्ट बॉक्स है वहां के उसके आगे लिखेंगे, दिस वे यू हैव टू राइट। ओके, तो मुझे बताओ फर्स्ट नंबर पे कौन सा नंबर आएगा? यस 1। सेकंड वाले के आगे 1 बाय 1 यू कैन राइट आंसर। यस, बेटा 1 नंबर पे कौन सा, मैंने पूछा कौन सा नंबर लिखोगे? आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। मैंने ये बोला है कि लेफ्ट साइड पे आपको नंबर्स दिए गए हैं, जो फर्स्ट वाले जहां पे 6 डॉट्स हैं उसके सामने हम कौन सा नंबर पुट करेंगे? लेफ्ट साइड से देखो कहां पे 6 है बन रहा है, और उसका नंबर वहां पे लिखो। यस, यू विल राइट नंबर 2। नंबर 2 पे जो 4 + 2 6 है वो मैच करेगा फर्स्ट बॉक्स के साथ। आपने ऐड करके फिर करना, नंबरिंग नहीं देखनी। नंबरिंग के लिए आपने बॉक्स देखना है, किस नंबर का बॉक्स राइट वाले बॉक्स के साथ मैच करेगा। फर्स्ट वाले बॉक्स के आगे आएगा नंबर 2, और नेक्स्ट देखो कितने डॉट्स हैं, और फिर लेफ्ट साइड में देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर हमारे पास प्लस करके कहाँ पे आ रहा है? नंबर 3 पे। तो इट मींस नंबर 2 वाले बॉक्स के सामने हम कौन सा नंबर लिखेंगे? नंबर 3। फर्स्ट वाले बॉक्स के सामने नंबर 2, सेकंड वाले बॉक्स के सामने नंबर 3,
फर्स्ट के आगे 4 वाला नंबर बॉक्स कैसे आएगा बेटा? वो तो 8 है। 4 वाले बॉक्स के पास तो नंबर 8 है। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट बॉक्स के सामने नंबर 2, सेकंड बॉक्स के सामने नंबर 3, अब आगे थर्ड बॉक्स में 9 डॉट्स हैं, तो 9 हमारे पास इधर कहाँ पे है? नंबर 5 पे। तो वी विल राइट नंबर 5 इन द फ्रंट ऑफ द बॉक्स थर्ड के सामने हम नंबर 5 पुट करेंगे। नेक्स्ट 5 है, तो 5 वाला नंबर कहाँ पे आ रहा है? नंबर 1 पे। ये तो ऑलरेडी मैचिंग करके दिखाई हुई है उन्होंने। जहां पे लाइन आ रही है फर्स्ट बॉक्स के साथ, वी विल पुट नंबर 1 देयर। आफ्टर दैट नेक्स्ट 3 नंबर हमारे पास कहाँ पे है? नंबर 6 पे। तो 6 नंबर हम डालेंगे नंबर 5 वाले बॉक्स पे के आगे। नेक्स्ट 8 कहाँ पे है? नंबर 4 पे। 8 plus 0 is equal to 8। एंड लास्ट नंबर 4 हमारे पास आ रहा है, वो 7 नंबर पे ही है, तो हम सेम नंबर पुट करेंगे। रमन मैम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। आंसर वाली स्लाइड निकालना, आई थिंक एक्स्ट्रा। यस, नाउ यू कैन चेक द आंसर्स। दिस वे यू हैव टू राइट बेटा। टेक योर टाइम एंड चेक योर आंसर्स। आपको इसी मेथड से मैचिंग करनी है जब भी नोटबुक में करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट में करो, मैथ्स में आया है, पंजाबी में आ जाती है, ईवीएस में आती है, इंग्लिश में आती है, तो दिस वे यू हैव टू राइट डाउन द नंबर्स। राइट बेटे। अब जिसको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, यस मैम आई हैव डन, सो दैट वी कैन शेयर द नेक्स्ट स्लाइड। आपने पहले ऐड करना था नंबर्स को और फिर मैचिंग करनी थी राइट साइड। Some students are still writing the answers. Okay, take your time, no problem is there. Can we proceed further? So many students are writing this, they have done. Okay, ma'am, share the next slide, please. Now see बेटा, 6 जग है और उनमें से बाय मिस्टेक 4 जग टूट गए। so, कई बार होता ना, हम इतने सारे कुछ चीजें लेके आते हैं तो टूट जाती हैं, तो इनमें से ऐसे ही मेरे पास 6 जग थे, तो जब मैं लेके आ रही थी तो 4 टूट गए। तो हाउ मेनी jugs are left? Yes, very quick answers. 6 minus 4 equals to 2. Very good, very good. It means concepts is, all concepts are clear to you. Addition के भी और subtraction के भी। अब एग्जाम में भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए फिर, ओके? वेरी गुड, गुड। Many students are writing correct answers. ये नवजीत कौर ने -2 लिख दिया, -2 नहीं आएगा बेटा, only 2. Ma'am, share the answer, please. Okay, you can check the answer, beta. 6 minus 4 equals to 2. बहुत smart हो गए हो. Okay, now 5 frogs are there. और 2 frogs थे, उन्होंने जंप कर दिया, वो पॉन्ड में गिर गए। और बाकी कितने बचे ऊपर देख रहे हैं उनकी तरफ? Write down the answer in the chat box.
Very good, 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 good. 5 minus 2 equals to 3. Very good. Very nice. Okay, you can check your answers also. Answer is there on the screen. So the right answer is 3 frogs. 3. Ma'am, next slide, please. Again, matching is there. You have to put the numbers. अब आपने क्या करना है? Subtract करके right वाले नंबर के साथ मैच करना है. तो 3 के सामने कौन सा नंबर आएगा, 4 के सामने कौन सा नंबर आएगा, this way you have to write. नंबर 3 के सामने कौन सा नंबर आएगा? फर्स्ट के सामने थर्ड नंबर? नो. फर्स्ट के सामने 3 नंबर कैसे? बेटे आपने राइट साइड वाले नंबर बताने हैं कि 3 के सामने जो पिंक कलर के बॉक्स जो सर्कल्स हैं उसमें जो नंबर डाला हुआ है उनके सामने 3 के आगे कौन सा नंबर लिखेंगे. लाइक 3, एक एग्जांपल मैं फर्स्ट बताती हूँ. आपने 3 के सामने नंबर 5 लिखना है क्योंकि नंबर 5 पे 6 माइनस 3 है. तो जब 6 में से 3 माइनस करेंगे तो राइट आंसर विल बी 3. तो दिस विल मैच विद 3. सो वी विल राइट नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ नंबर 3. जो सर्कल में नंबर 3 है उसके सामने 5 आएगा. यस. अब 4 के सामने बताइए कि कौन सा नंबर आएगा. दिस वे यू कैन राइट नंबर 3 के आगे 5, 4 के आगे 4 कहाँ पे आ रहा है? लेफ्ट साइड में सॉल्व करके देखो 4 कहाँ पे आ रहा है. नंबर 4 पे. यस, वेरी गुड. 4 के सामने नंबर 4. 4 के सामने नंबर 4 है. नेक्स्ट नंबर 3 के सामने, नंबर 2 के सामने नंबर 2 जो सर्कल में नंबर 2 है वो किसको सॉल्व करने पे आएगा? लेफ्ट साइड से 1 को. बेटे एरो भी लगा हुआ है वहां पे. तो 2 के सामने हम लिखेंगे नंबर 1. वेरी गुड. 5 के सामने हम क्या लिखेंगे? नंबर 5 किसको सॉल्व करने पे आता है? नंबर 2 को. वेरी गुड. 5 minus 1 4. राइट बच्चे. 6 किसको सॉल्व करने पे आएगा? 6 आएगा नंबर 6 को सॉल्व करने पे. वेरी गुड. 7 minus 1 6. तो 6 के सामने हम नंबर 6 लिखेंगे. 8 के सामने कौन सा नंबर आएगा? देखो 8 कहाँ पे आता है? वेरी गुड. देविंदर देसी नंबर 3 के सामने. राइट. वी विल राइट नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ नंबर 8. और लास्ट 0 के सामने 0 किसको सॉल्व करने पे आएगा? वेरी गुड. गुरसिमरन कुलविंदर राय राइट आंसर. योगिता वर्मा राइट आंसर. 7. Okay, ma'am, you can share the answers of matching. You can check the numbers, beta. यही सीक्वेंस था आपका. तो मैंने 2 क्वेश्चंस आपको एडिशन में भी बता दिया मैचिंग कैसे आ सकती है और सब्ट्रैक्शन में भी. तो दिस वे यू कैन सॉल्व द मैचिंग. मैम शेयर द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Now beta 3 questions are there.
आपने ब्लैंक्स को देखना है और ब्लैंक्स के अंदर आपने आंसर्स फिल करने हैं। तीनों इकट्ठे आंसर लिख के भेजो। नंबर 1 A B C या 1 2 3 डाल के इनको सॉल्व करो। 10 एग्स हैं, उसमें से 4 ब्रेक हो गए तो कितने लेफ्ट बचे? फिर 3 टॉफीज हैं, उसमें से 5 हमने खा ली, बाकी कितनी बची? और उसके बाद जो ब्लू है वो 12 है टोटल, उनमें से 6 यूज कर ली, तो आंसर क्या आएगा लेफ्ट? तो तीनों आंसर्स आप कलेक्टिवली भेजोगे सो दैट आई कैन कम टू नो कि आप इसका आंसर ही लिख रहे हो, पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो। ओके, तीनों क्वेश्चंस के आंसर इकट्ठे टाइप करके भेजो। यस, फर्स्ट आंसर आ गया मेरे पास। टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम इज देयर बेटा। आपने करना क्या है, जो स्मॉल नंबर है उसको माइंड में रखना है और बिग वाले नंबर तक फिंगर्स ओपन करनी है। जैसे आपने यहाँ पे 4 में जो स्मॉल नंबर है 4 है उसको माइंड में रखो और बिग 10 है तब तक फिंगर्स ओपन करो। 4 के आफ्टर 5 6 7 8 9 और 10, तो आंसर विल बी 6। ऐसे आंसर करना है आपने। ओके, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन यू पीपल विल सॉल्व बाय योरसेल्फ, आई विल नॉट हेल्प यू। Yes, very good. I'm getting the answers. First का आंसर 6, सेकंड का 8, very good. एक बच्चे ने 1 आंसर लिखा है सेकंड का, this is not right. प्रिया गुप्ता, नहीं प्रिया गुप्ता से ऊपर जो था बच्चा, ओके, आपका आंसर रॉन्ग था। Yes, 6 8 and 6 minus 6 0 बेटा 12 minus 6 है, that is not 6 minus 6. Yes, मैम, मैंने गलती से आधी कैंडीज देखी। वो खुले हुए रैपर्स हैं जो खाली हैं। ऐसे ही जो पेस्ट है वो ब्लू है जो खत्म हो गई है, वो छोटी सी करके दिखाई हुई है। ओके, टोटल सारी काउंट करनी है आपने, जो खाली है उनको खोल के दिया हुआ है। एसबेरी कंपनी बी, क्वेश्चन का आंसर आपने 1 दिया है। 1 कैसे आएगा? यस, फर्स्ट का आंसर 6 है, सेकंड का आंसर 8 और थर्ड संदीप कौर बेटे कौन है इस आईडी से, उसने 10 आंसर दिया है। 10 इज नॉट करेक्ट। सी का आंसर भी 6 आएगा। ओके, सी का आंसर भी आप 6 लिखो। मैम शेयर द आंसर्स प्लीज सो दैट दे कैन चेक। Raman ma'am, yes beta, you can check the answers. Answers are there on the screen. ओके बेटा, अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। ये जैसे कुछ बच्चे थे, 5 स्टूडेंट्स ने एक क्विज में पार्टिसिपेट किया, एक गेम खेली। ठीक है, क्विज में कोई गेम थे, वो उन्होंने 5 राउंड्स खेले, 5 गेम्स खेले। ओके, तो जो फर्स्ट बच्चा था अब्दुल, उसने फर्स्ट गेम में 4 मार्क्स लिए, सेकंड गेम में 8, थर्ड में 4, 4 में 4 और फिर फिफ्थ गेम में 10। इट्स जस्ट ए गेम, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट गेम है आपके लिए भी। आपने क्या करना है, अब्दुल, सेमी, नेल और जसवीर और माँ, इन सबके नीचे ही उनके मार्क्स दिए हुए हैं। आपने इन सबको ऐड करना है और मुझे बताना है कि किसने विन की गेम। इनमें से सभी आंसर्स को 1 बाय 1 ऐड करते जाओ। नोटबुक में करो ये वाला क्वेश्चन। ओके, पहले 4 में 8 किसने गेम जीते ये ढूंढना है। यस, गेम में विन किसने किया, जीता कौन इनमें से?
इन पांचों बॉयज में, पांचों बच्चों में से गेम किसने विन करी? It will take time, I know, no problem. Just this is the last question. After that, your maths class will be over. आपने सबको ऐड करके देखना है कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए, सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसने लिए और किसने गेम को विन किया. Very good. I got the first answer, right answer. डिम्पी मिन्हास 11, ये कैसे लिख रहे हो? ओके, आप आई थिंक पिछले क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो अभी. फर्स्ट जो बॉय है उसके टोटल नंबर काउंट करेंगे, सेकंड के काउंट करेंगे, थर्ड के, तभी कह रही नोटबुक में करो. सैमी के 20 मार्क्स, ओके. अब्दुल के 30, सैमी के 20 और यस, I will tell you the right answer. नील ने 9 मार्क्स लिए, जसबीर के 16 और मार्क के 11. तो विन किसने किया? अब मैंने आपको मार्क्स भी बता दिए. अब्दुल के 30, सैमी के, आई एम वेटिंग बेटा, आई एम वेटिंग, नो प्रॉब्लम. संदीप को 40. व्हाट आर यू राइटिंग बेटा? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. 40 20 आप क्या लिख रहे हो? आई वॉन्ट द नेम ऑफ द बॉय. कौन से बॉय ने गेम विन की? जो भी गेम्स इन्होंने खेली इसमें विनर कौन था? टेल मी द नेम ऑफ दैट बॉय. अब्दुल, वेरी गुड. अब्दुल won the game because अब्दुल ने सबसे ज्यादा स्कोर किया, that was 30. अब्दुल के 30, सैमी के 20, नेल के 9, जसवीर के 12, सॉरी 16 और मार्क के 11. तो अब्दुल was the winner. Okay ma'am, share the name please. Abdul wins the game. Okay ma'am, that's it from my side for the day. Thank you very much. Now you can share the EVS work. But if you have any doubt, you can call, you can play this type of game with your brothers, sisters or your friends, and so that you can come to know how to count the numbers on the fingers. छोटे छोटे जो अपने पॉइंट्स होते हैं, 5 राउंड्स खेलो और देखो किसने कितने मार्क्स विन किए, फिर उनको काउंट करो. ऐसे आपकी एडिशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी. ओके, नाउ इट्स टर्न फॉर द EVS वर्क. यू कैन डू योर वर्क. Okay, children, very good morning once again to you all. So before I start, there is some important instructions, so listen to that carefully. अभी तक हमने 3 चैप्टर्स जो किए हैं वो आपके PT2 का सिलेबस है, राइट. अब ये जो 4th चैप्टर है, हाउस वी लिव इन, मैम आपको करवाने लगे हैं. ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट. ये आपको पेपर में नहीं आएगा चैप्टर, ये मैम ऑलरेडी कटवा चुके हैं. जब मैम ने सिलेबस शेयर किया था सारे सब्जेक्ट्स का, उसमें ये चैप्टर हम कट कर चुके हैं. बट ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में आपको ये टॉपिक आएगा. सो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग वी आर डूइंग दिस वर्क. ऑलराइट. सो इसमें से आपको मैम कोई क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में नहीं कराएंगे, कोई नोटबुक में वर्क नहीं कराएंगे. सो दिस इज ओनली फॉर एक्टिविटी क्लास. सो लेट्स स्टार्ट बेटा. अब फर्स्ट है चैप्टर का नाम इज हाउस वी लिव इन. हम सबको पता है हम कहाँ रहते हैं. कहाँ रहते हैं हम? Where do we all live?
I'm waiting for your answer in the chat box. Where do we live? Okay, house. Very good. So we all have a beautiful house to live in. Aman says India. Of course we live in India, but we have our own house. ठीक है, आपका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है हाउस का जहाँ पे आप रहते हैं. So okay, I got your answer. Now, अब मीनिंग ऑफ हाउस क्या होता है? हाउस का मतलब क्या होता है? अ हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव इन, जहाँ हम रहते हैं. ठीक है, आप सोचो, आप रोज स्कूल जाते हो, उसके बाद आपको डेली पता है कि आप घर वापस आओगे. आपका घर कौन सा है? आपके ऑटो वाले को, बस ड्राइवर को पता है कहाँ आपको छोड़ना है, बिकॉज एवरीवन हैज अ डिफरेंट प्लेस टू लिव इन. जहाँ हम रहते हैं उसको हम अपना हाउस बोलते हैं. सो हाउस एक वो जगह है जहाँ हम रहते हैं, राइट. एंड नाउ, अब जब बहुत टाइम पहले लोगों के पास घर नहीं होते थे या उनको नहीं पता था घर कैसे बनाते थे, वेरी ओल्ड टाइम, मिडीवियल पीरियड में, तो लोग क्या करते थे? वो केव्स में रहते थे, ट्रीज के ऊपर घर बनाते थे, ट्री हाउसेस बनाते थे अपने. या जंगल में जो केव्स बनी हुई थी वहां वो रहते थे. हमने क्लोथ्स चैप्टर में भी किया होगा, आपको याद होगा कि जब लोगों के पास क्लोथ्स नहीं होते थे वो एनिमल स्किन पहनते थे. तो ये उसी टाइम की बात है जब वो लीव से, एनिमल स्किन से अपने आप को कवर करते थे. तो वो रहते कहाँ थे तब? केव्स में रहते थे या ट्रीज पे रहते थे. तो फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि हम अपना हाउस बना सकते हैं. उन्होंने स्टोन्स यूज किए, फिर धीरे धीरे ब्रिक्स बनानी स्टार्ट कर दी और उसको फिर और बेटर बनाते गए. शुरू में गांव में अगर आप जाओगे ना विलेजेस में, वहाँ कच्चे हाउस होते हैं, मिट्टी के बनाते थे वो लोग, मड के बनाते थे. बट फिर धीरे धीरे उसको और स्ट्रॉन्गर बनाते गए. हम सीमेंट यूज करते हैं, अब आयरन रॉड्स यूज करते हैं, सो दैट आवर हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग. सो फंक्शंस ऑफ अ हाउस क्या है? अब हमें घर क्यों चाहिए? आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, एनलार्ज कर लो चाहे अगर आपको नहीं दिख रहा. तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं जिससे हमारा घर हमें बचाता है. जैसे फर्स्ट पिक्चर में हाउस है जो उसके ऊपर स्नोफॉल गिर रही है, बर्फ गिर रही है. बहुत ठंडी जगह में जो लोग रहते हैं, जैसे इंडिया में भी हिल स्टेशन हैं, शिमला, मनाली, वहाँ पे बर्फ गिरती है ड्यूरिंग विंटर सीजन. ठीक है, तो लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हाउस की जरूरत है, बिकॉज आप स्नो में अगर बहुत देर तक बैठोगे तो इट कैन बी डेंजरस फॉर यू, राइट. देन रेनफॉल, इवन जब बारिश होती है तब भी हमारा घर हमें बचाता है. इवन कोई लाइटनिंग गिरती है, बिजली गिर जाए या आग लग जाए बाहर कहीं, तो हमारा घर ही है जो हमें प्रोटेक्ट करता है. इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ साइक्लोन, कोई तूफान आ जाए, फ्लड्स हो जाए या किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाए, तो उस सारे केसेस में हम कैसे बच पाते हैं? हमारा हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, इवन व्हेन यू स्लीप एट नाइट, आपको पता है मम्मा पापा अच्छे से डोर्स लॉक करते हैं, गेट को लॉक करते हैं, सब बंद करके सोते हैं, क्योंकि कोई हमारे हाउस में अंदर ना आ सके, हम प्रोटेक्टेड रहें, हम सेफ रहें. सो हमारा हाउस हमें थीव्स से, मतलब चोरों से भी बचाता है, बुरे लोगों से भी बचाता है. कोई वाइल्ड एनिमल अगर आ जाए आपके एरिया में, लोकेलिटी में, उससे भी आपका हाउस आपको बचाएगा. सो इन सारी चीज़ों से हमें कौन बचाता है? हमारा हाउस बचाता है. तो हाउस का फंक्शन क्या हुआ? इट कीप्स अस सेफ. इवन आपको पता है, अब रिसेंटली हमने बहुत सुना था कि कोरोना है, ठीक है, कोविड-19 है, तो सब लोग क्या कहते थे? स्टे होम स्टे सेफ. मतलब अगर आप घर पे रहोगे तो आप सेफ रहोगे, है ना. बहुत सारे बच्चे भी ये बोलते थे. सो दैट मीन्स हाउस इज आवर बिगेस्ट एसेट जो हमें हर प्रॉब्लम से बचाता है. सो एक बार हम इस स्लाइड में क्या लिखा मैम ने, सेम चीजें पॉइंट्स में लिखी हैं. फंक्शंस ऑफ अ हाउस. हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, किस किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? हाउस हमें हीट से, ज्यादा गर्मी से बचाता है, हमें ज्यादा ठंड से, कोल्ड से बचाता है, रेनफॉल से बचाता है, वाइल्ड एनिमल से बचाता है. ठीक है, और इट कीप्स अस सेफ एंड कंफर्टेबल. आप कभी बाहर जाते हो तो आप शॉपिंग करने गए या घूमने गए और शाम तक जब आप थक जाते हो तो फिर आप कहते हो ना जल्दी से अब हम घर चलते हैं, घर जाके रेस्ट करते हैं, बिकॉज योर हाउस मेक्स यू कंफर्टेबल. ठीक है, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ अ हाउस. सो आई होप आपको इतना समझ. मैम Yes. that is the time of stone age. Yes, very right, that is stone age. ठीक है,
So now just to check your understanding, I have kept this slide. अभी तक जो हमने पढ़ा उसके लिए blanks डाले हैं मैम ने. So first point is dash is a place where we live in. हेल्प बॉक्स में ढूंढिए क्या आएगा इसका आंसर. अभी हमने किया था. वेरी गुड. प्रिया गुप्ता सेज हाउस. मेरी दीदी ने लर्न कराया बेटा. ओके, पे अटेंशन देन, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. वेरी गुड. हाउस. एंड जो बच्चे एच कैपिटल लिख रहे हैं ना, वेरी वेल डन, बिकॉज ये बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है. हेल्प बॉक्स में भी मैम ने एच कैपिटल इसीलिए रखा है क्योंकि ये बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में वर्ड आ रहा है. वेरी गुड. हाउस इज करेक्ट आंसर. दविंदर देसी. बेटा हाउस के स्पेलिंग गलत हो गए आपके. आपको हेल्प बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां से देख के ठीक करो. ओके, अब नंबर 2 रीड करते हैं. Many years back people used to live in dash. मतलब बहुत साल पहले जब लोगों को घर बनाने नहीं आते थे तो वो कहाँ रहते थे. Where do they live? Tree is not given in the help box. मोक्ष, ट्री तो लिखा ही नहीं हेल्प बॉक्स में, आपने ट्री लिख दिया है. सोनिया और सेज हट. हट भी नहीं था. मैनी इयर्स बैक तो हट भी नहीं बनानी आती थी लोगों को. अभी मैम ने आपको बताया. कमलजीत कौर. बेटा ये आप क्या कर रहे हैं. मैम जस्ट चेक द चैट बॉक्स. दिस चाइल्ड इज सेंडिंग इमोजीज ओनली. वेरी गुड. सो केव्स इज द करेक्ट आंसर. मैम ने हट आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है. हट तो जब लोगों को घर बनाना आ गया था तब उन्होंने हट बनाई थी, बट उससे पहले वो केव्स में ही रहते थे. और ट्री भी हम लिख सकते थे यहाँ, बट अगर सिर्फ वो हेल्प बॉक्स में दिया होता तो, क्योंकि हेल्प बॉक्स में ट्री नहीं दिया है तो इसलिए हमने ट्री नहीं लिखा. गुड. 3 नंबर रीड करते हैं. अब आप स्टॉप टाइपिंग एंड लिसन टू मी. नंबर 3 सुनो. अ हाउस डैश अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. एक घर जो होता है वो हमें वाइल्ड एनिमल से क्या करता है. वेरी गुड. रोजी सैनी का आंसर आ भी गया. एस बेरी कंपनी एंड संदीप कौर. बेटा दिस इज नॉट द आंसर. यहाँ आप कंफ्यूज हो गए हो. इंद्रजीत सिंह करेक्ट आंसर. गुरसिमरन करेक्ट. योगिता वर्मा, डिम्पी मिनहास, इनका ठीक है. जिनका मैं नेम बोल रही हूँ उनका ठीक है सिर्फ आंसर. शिवानी शर्मा. कमलजीत कौर. अगेन इमोजीज आर बीइंग सेंट. कुलविंदर रॉय, मोहिंदर पाल, संजीव कुमार, सोनिया और राकेश कुमार, रुशीन. 4 नंबर बेटा. व्हाट डज दैट मीन. ओके चिल्ड्रन लिसन टू मी नाउ. अब आपने कई बच्चों ने इसमें लिखा है सेफ. सेंटेंस दोबारा रीड करें. अ हाउस सेफ अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. नो, ये इसका आंसर नहीं था. इसका आंसर था प्रोटेक्ट्स. हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है से वाइल्ड एनिमल से. ओके तो जिन बच्चों ने सेफ लिखा है इसका आंसर दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि अब आप 4th वाला रीड करो. अ हाउस कीप्स अस डैश एंड कंफर्टेबल. तो अगर आप यहाँ पे 3 नंबर पे आप डाल दोगे, सॉरी मैम ने नंबरिंग गलत की हुई है. आप ऊपर वाले में अगर आप लिख दोगे सेफ लिख दोगे तो 4th में लास्ट में क्या लिखोगे फिर आप. ओके सो यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूजन हो गई है. मैं दोबारा रीड कर रही हूँ. हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स आएगा एंड इट कीप्स अस सेफ एंड कंफर्टेबल आएगा. ओके सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है. ओके अब मैं रीड करवा रही हूँ. जो पॉइंट्स अभी हमने जस्ट अभी अंडरस्टैंड किए हैं उनकी रीडिंग करते हैं एक बारी. कुलविंदर राय की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करिए. यस मैम. ओके रीड नंबर 1 प्लीज. हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव इन. वेरी गुड. ठीक है ये बहुत इजी था. सुखमन बंगा. बेटा अनम्यूट क्विकली. You don't want to read? Shruti Thakur. Yes ma'am.
बच्चे रीड नंबर 2. Nanny, हाँ जी. yes, that यस. there वर. were no house, हाउसेज. पीछे एस भी लिखा है houses, ना, हाउसेज आएगा. ओके. houses, ओके. मैनी ईयर्स बैक देयर वर नो हाउसेज, मतलब बहुत साल पहले, बहुत बहुत टाइम पहले कोई घर नहीं होते थे. तो फिर लोग क्या करते थे? ये रीड करेंगे सोनिया और जिनिशा. नंबर 3. Better write your name in the chat box. I can't know like this. Jinisha, are you there? Unmute and read number 3. ओके बेटा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी. इट्स ओके, आई विल रीड अगेन. पीपल यूज्ड टू लिव इन केव्स और ऑन टॉप ऑफ द ट्रीज. तो जब लोगों के पास घर नहीं होते थे तो तब वो कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे या टॉप ऑफ द ट्रीज रहते थे. ओके, नाउ आई विल कॉल कमलजीत कौर. कमलजीत कौर की आईडी से कौन है बच्चा? आई वांट टू सी. अनम्यूट क्विकली. Who was sending only emojis? Should I remove this time? Ma'am, No. हाँ जी मैम. if I remove this, मैम, I can't hear you. Palak, read number 4. Yes, ma'am. Number 4. Today we live in houses. ओके, वेरी गुड. बट इसका मतलब क्या है कि आज हम हाउसेज में रहते हैं. टुडे हम मतलब इस टाइम पे हम कहाँ रहते हैं? हम केव्स में या हम ट्रीज के टॉप पे नहीं रहते. अब हम हाउसेज में रहते हैं. अमन, अमन, रीड नंबर 5. अमन, अमन बेटा, जिसका मैं नेम बोल रही हूँ बस वही अनम्यूट करेगा. रीड 5. A house protects us from heat, cold, rain, wild animals, etc. Okay, very good. A house protects us from heat, cold, rain and wild animals etc. तो ये था function of house जो अभी हमने किया था. Okay, विधान, you can unmute. इतनी बारी लिख दिया आपने चैट बॉक्स में. विधान, नंबर 6 रीड करना बेटा आपने. Read. ओके, विधान, इट क्या है यहाँ पे? इट किसके लिए यूज किया है? क्या? हाउस के लिए. वेरी गुड. जो हाउस है वो हमें क्या रखता है? सेफ एंड कंफर्टेबल. सो बेटा, अभी मैंने सिर्फ आपको 1 पेज ही करवाया इस चैप्टर का. तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. एंड आई एम रिपीटिंग, ये आपके एग्जाम में, पेपर में नहीं आना. ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैम करा रहे हैं. ओके, तो अब हम करते हैं थोड़ी सी डिक्टेशन. आई विल स्पीक द वर्ड एंड यू विल राइट इट इन द चैट बॉक्स. सो स्टॉप राइटिंग. आई विल नॉट कॉल आउट एनीवन फॉर रीडिंग नाउ and listen to me. Number 1 पे आप लिखिए. First word is healthy. Healthy. Let's see who is the first one to send. S Berry Company. Palak, Priya Gupta. Very good. You will write with small h beta. Yogita Verma, I said healthy, not health. सिर्फ y नहीं डालने से आपकी स्पेलिंग भी गलत हो गई. अमन, अमन wrong. सुखमन बंगा अगेन रॉन्ग. बाकी बच्चे ठीक लिख रहे हैं. वेरी गुड. परम बसरा इनकम्प्लीट.
Okay. Baki Aman has corrected. Okay. Rest are writing fine. So moving on, number 2 is exercise. Number 2, exercise. Very good, Yogita Verma. Beta, E should be small. When we write difficult words or dictation words, we start them with small alphabet. Some are still sending answer for 1. Okay, I'm checking. Very good. Exercise सब ठीक लिख रहे हैं. Good. Spelling still now all correct of exercise. Very good. Right. So everyone knows the spelling of exercise. That's good to know. Number 3 लिखते हैं अब. Morning. 3 is morning. Again, M should be small. Aman, your spellings of exercise wrong. Param Basra, no need to send emojis. Morning correct. Okay. मोक्षदीप आपका फिर मिस्टेक हो गया स्पेलिंग का. Very good. This is easy one. हाँ जी मैम. Yes. Ma'am, I can't hear you. Can you write in the chat box? I'll get to know. Number 4 लिखिए बेटा. Stranger. Summi Arora, wrong spellings. Stranger. Kulvinder Rai, very good. First one to send the answer. Palak, Simran, Diljit Kaur, Ritu Sharma, Priya Gupta. Ma'am, you're not audible. Your voice is cracking. I can't hear you. Devinder, Desi, beta wrong spellings हो गए. कुलविंदर राय, स्विच तो मैंने बोला ही नहीं बेटा. नो मैम, यू आर नॉट ऑडिबल. नहीं अभी मैं बोल रही हूँ रमन, आप देखो. हाँ जी, now fine. Okay. I have changed the location. Yeah, now it's better. अमन अगेन बेटा मिस्टेक आपके हर बारी एक बारी आप गलत लिखते हो फिर करेक्ट करते हो. You have to really work hard on spelling part. Stranger, र की साउंड भी तो आ रही है बीच में, आपने ST के बाद R नहीं डाला है. Listen carefully. Don't say sorry. You have to pay attention. से ढूंढ रही हूँ मैं. Minhas. Number 5 is switch. अब मैंने स्विच बोला है तो एक बच्चे ने पहले ही स्विच कैसे लिख दिया, आई डोंट नो. स्विच. सो आई होप किसी ने नोटबुक नहीं ओपन करी हुई, चीटिंग नहीं करनी है आपने. मोनिका मैम, आर यू सेइंग समथिंग? वेरी गुड, स्विच इज करेक्ट. सो मुझे लग रहा था इसमें आप शायद मिस्टेक कर देंगे, बट यू आर राइटिंग इट करेक्टली. अभी हमने ये चैप्टर किया था. सुखमन बंगा, इट्स नॉट डबल H in switch, it is single H at the end. नेक्स्ट वर्ड नंबर 6 है decent. Decent. लेट्स सी, ये याद है आपको कि नहीं? लिसन नहीं बोला बेटा मैंने. प्रिया गुप्ता, आई सेड decent. कुलविंदर राय, वेरी गुड, करेक्ट. प्रतीक्षा, एस्पेरी कंपनी, वेरी गुड. दिलजीत कौर, ठीक है आंसर आपका. गुड, आपको याद है इसका मतलब, पिछले वर्ड्स भी याद है अभी तक आपको. ये हमने क्लोथ्स चैप्टर में किया था ये वाला वर्ड, दैट क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट एंड डिसेंट. श्रुति ठाकुर, आपने रिसेंट लिख दिया बेटा, मैंने डिसेंट बोला है. अमन, नाउ इट्स करेक्ट. रोजी सैनी, जुगल शर्मा, जुगल कुमार, गुड. सो अभी आपको याद है वर्ड, गुड टू नो दैट. नेक्स्ट वर्ड इज कॉटन. नंबर 7, कॉटन.
कुलविंदर राय इज द फर्स्ट वन टू सेंड द आंसर। बेटा आप बहुत जल्दी टाइपिंग कर रहे हो, आई होप आप कहीं से देख नहीं रहे हैं। पूजा लुत्थर, आई डोंट नो बेटा क्या सेंड किया आपने, अदरवाइज बाकी बच्चे ठीक लिख रहे हैं। स्पेलिंग कॉटन इज इजी, गुड। ये भी हमने क्लोथ चैप्टर में किया था, कॉटन। बेटा 6 number was decent, and 7 is cotton. रितु शर्मा, बेटा डिसेंट के स्पेलिंग रॉन्ग हो गए आपके। ओके 8 number is woolen, वुलन। ये भी कौन से चैप्टर में से है? क्लोथ्स चैप्टर में से। नंबर 8 इज वुलन, वेरी गुड। पलक, नो पलक के रॉन्ग है। पलक रॉन्ग, दविंदर देसी रॉन्ग, मिस्टेक हो गई है। परम बसरा रॉन्ग, श्रुति ठाकुर रॉन्ग, ये भूल गए हैं आपको स्पेलिंग्स। एक्सपर्टीज से स्किल रॉन्ग, दिलजीत का रॉन्ग। वुलन, जो बच्चे जल्दी से कर रहे हैं ना, मिस्टेक हो रही है उनकी। संजीव कुमार, योर्स आर ऑल्सो रॉन्ग स्पेलिंग्स। परम बसरा फिर से रॉन्ग लिखा है आपने बेटा। वूल के स्पेलिंग क्या होते हैं? आप सिंगल ओ लिख के भेज रहे हैं जो बच्चे, वूल के स्पेलिंग नहीं आते आपको, WOOL। और वुलन में एक चीज और डबल आती है, ओ भी डबल आता है, एल भी डबल, एंड पीछे EN। तो पहले आपने ON लिखा था बहुत सारे बच्चों ने, तो आप चीटिंग करते हो, मतलब जिसने सबसे पहले लिख दिया उसका ही लिख के स्पेलिंग भेज दिया। 9 number अवॉइड, अवॉइड। ये अभी हमने आज किया है, सॉरी आज नहीं किया, इसी लास्ट चैप्टर में किया था, सेफ्टी रूल्स वाले में। अवॉइड, वेरी गुड, ये याद है आपको, राइट। अवॉइड, सो दिस यू रिमेम्बर। पुराने वाले बीच में आपको भूल रहे हैं वर्ड्स। वुलन के स्पेलिंग बहुत बच्चों ने रॉन्ग लिखे थे, दिस इज करेक्ट। एंड नंबर 10 लास्ट वर्ड इज मेडिसिन, मेडिसिन। राकेश कुमार है सेंट ऑल टुगेदर, वेरी गुड बेटा, ऑल आर करेक्ट, 10 on 10। सोनिया ओरी, ऑल करेक्ट, गुड। नो, लास्ट इज रॉन्ग, सोनिया ओरी मेडिसिन के रॉन्ग हो। हाँ जी मैम, आई चेक्ड। स्वयं स्वरंजीत साहब आपने कॉपी किया है आई थिंक मैसेज पूरा ही जिनिशा का, और वैसे ही भेज दिया है रॉन्ग स्पेलिंग्स के साथ। व्हाट इज द यूज? अमन, ये भी रॉन्ग हो गए बेटा आपके। इंद्रजीत सिंह, ऑल करेक्ट, बट कीप इन माइंड यू हैव टू राइट विद स्मॉल अल्फाबेट। ओके, सो आई होप आपने लिख दिए हैं। अब अपने आंसर चेक करो स्लाइड के साथ एंड मार्क्स दीजिए खुद को 10 out of 10, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। सबके 10 on 10 आए हैं। पलक, आपकी एक मिस्टेक हुई थी है ना वुलन की, विच यू करेक्टेड लेटर। ओके, रेस्ट इज फाइन। सो 10 on 10 जो बच्चे लिख रहे हैं, आई होप आपने सारे ठीक लिखे थे। तो ये जो अभी मैंने आपको डिक्टेशन करवाई है बेटा, ये सारे वही वर्ड्स हैं जो आज मैंने आपको वर्क भेजा है, ठीक है। व्हाट्सएप पे जो वर्क भेजा है ना मैंने आपको, अगर आपने देखा होगा, ये वही वाले वर्ड्स हैं। तो मैम ने ये कंबाइंड एक्सरसाइज बनाई थी ऑल 3 चैप्टर्स की, जो PT2 के चैप्टर्स थे, ठीक है। तो आपको इसीलिए मैंने कहा था मैसेज में कि आप एक बार उनको रिवाइज कर लेना और फिर उसको अटेम्प्ट करना, सो दैट यू डू इट योरसेल्फ, ठीक है। सो गुड टू सी दैट you still remember most of the words, okay? So अब हमारा EVS का सिलेबस फिनिश हो चुका है, अब हम बस रिवीजन ही करेंगे। So अगर कोई डाउट होगा आपको, you can ask side by side, ठीक है। So any doubt you can ask, otherwise that's it for the day. Enjoy your day, study well.